Yes, sir. Fair enough. I would write that email as discussed and send it to them today itself. But, sir, one more query is there in my mind. What if Janardhan once again comes up with any revised business idea and revised business plan with the help of Jayant again? In that case, what shall we do ahead? Well, Shripad, right query this is. Even I was thinking over this point. That is why I asked all of you to provide your inputs in opinion, reason, and conclusion formats only. Because it is only way to say our all final no to their lucrative proposal. I'm sure that though Janardhan is greedy about his business ventures, he do know about the reading between the lines very well. That is why I told you to include all those details in minutes of meetings and to keep email content in short. I'm sure Janardhan would read our exact opinion as per our minds, and he won't try further to come up with any revised proposal for sure. The way I know Janardhan, he is very astute businessman, and thus reads all situations very well as he is very studious about situation awareness. Haven't you seen that day? How he went away from the active agenda meet. He senses all things just by its initial nature only and gets all results in advance itself. He is always 2 feet ahead than anyone, Shripad. That is why I requested all of you to give your inputs in those prescribed manners only. He could see everyone's reply on his proposal and would read our minds there itself, as we don't want to go with his any kind of such proposal like this. So this would ensure that he won't take any further steps ahead, and it would further demotivate him to come back again with any further such kind of proposals. This way, I've tried to keep him away from ACCS family, from his dangerous come lucrative business proposals. I suppose this must work as final lesson for Janardhan and his partners to demotivate them from bringing another ill-minded proposals in this ACCS campus. Shripad, I guess he would read this hidden message loud and clear. Okay, sir, apt solution. But what if he withdraws from his position of trustee? I know you have given answer over my this query in the past as well, but still I want to know real picture about it if this happens ahead. Well, Shripad, don't worry. We can find some right person for the position that Janardhan is heading for ACCS. But yes, it would go on ugly scenes for sure. Janardhan may withdraw it if he finds this reply too harsh for him. But he is sensible enough and he would stick to this position. I have already given him large tax benefits over his financial support towards SCCS services. But if he tries to go away, the loss would be his only, and he would lose lot of money in terms of several taxes as per his own opinions. So Shripad, my gut feeling says he would stick to this lovely association and won't dare to cross its path anymore. और वैसे भी श्रीपाद, दुनिया में एक सही राह पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ही कितनी बची हैं, तुम ही सोचो. Fair enough, sir. Okay then, all things are resolved. I shall shoot this email in next 2 hours to both of them by keeping you and rest all official emails of ACCS in CC. I'm sure it would definitely affect Janardhan to the larger extent over his thought process. And if it goes well for us, he won't come back again with such ill-minded proposals in the future. If he wants to stay in touch with ACCS, then he must have to stick with its overall thought process only. Hope he would get this clarity in his mind and would stick to it in coming time. Okay, sir,
You may get late for your meetings. I will do the incomplete task complete for this email in next 2 hours to end this chapter once for all, sir. जयवंत, ईमेल मिला तुम्हें आज का? अभी अभी 2 घंटे पहले आया हुआ है। हाँ देखा जनार्दन, और तुम्हें ही फोन करने वाला था मैं अभी। इतने में तुम्हारा आ गया। हम्म, देखा, जैसे मैंने उस दिन कहा था, ठीक वैसा ही रिजल्ट आया सामने से। वेल जनार्दन, हैव यू सीन द फाइनल वोटिंग? It is 7 out of 7 against our proposal, and that too without any vote of प्रताप राव। एक बहुत काबिल खिलाड़ी निकला प्रताप राव। सच में बिना हाथ गंदे किए उसने हमारा काम तमाम किया जनार्दन। मैं भी यही सोच रहा था जयवंत, इसलिए तुम्हें उसी दिन कहा था मैंने कि यह मीटिंग तो एक ढोंग है, ढोंग। जैसे ही हम वहाँ से निकल गए तो इस प्रपोजल का हाल तो यही होना था जयवंत। एक साफ सुथरा गेम खेला प्रताप राव ने और बिना कुछ किए हमारा पत्ता काट दिया दूसरों के हाथों। वैसे भी वो सब माहौल और उन सब लोगों की बातें सुनकर तो यही लगा था मुझे उस दिन। इसलिए जब तुमने वहाँ से लौटते वक्त एक्साइटमेंट में मुझे पूछा था, तभी मैंने मेरी गट फीलिंग के हिसाब से तुम्हें वही कह दिया था कि ये सब जा चुका है हमारे हाथों से। इन्हें कितना भी चमचमाता प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या फिर लुक्रेटिव प्रोजेक्ट ऑफर दो, ये लोग इतने ऑर्डिनरी ख्यालात के हैं कि इन्हें कोई भी पैसों का लालच देकर इन्हें बदल नहीं सकता। सालों से ये लोग ऐसे ही हैं जयवंत, सालों से। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पैसों को छोड़कर जीवन के हर बाकी मूल्य इन्हें ज़्यादा पसंद है जयवंत। किसी को आगे बढ़ना ही नहीं है लाइफ में, समझे? देखा मैंने उस दिन उन सबको और उनके विचारों को। प्रताप राव भी शायद उनका संगीन फ़ायदा और मज़ा ले रहा है जनार्दन। सिर्फ पढ़ाई और स्किल्स से आदमी अपने लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेता और क्या चाहिए था किसी को। लेकिन लाइफ की सच्चाई से बहुत दूर है ये लोग। इतना भी नहीं समझते कि मुट्ठी भर के दामों में प्रताप राव ने उनके स्किल्स और मेहनत को खरीद के रखा है। मुट्ठी भर दामों में जनार्दन, मुट्ठी भर।
और सालों से उन्हें अपने यहाँ घिसाई करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और ये मूर्ख लोग तो ये भी नहीं जानते कि बाहर अगर वो अपनी योग्यता ठीक तरह से साबित करे तो वो माला माल हो सकते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य ला सकते हैं। लेकिन किसे चाहिए ये सब? एक अच्छी कही जाने वाली सैलरी मिली, थोड़ा सा मान सम्मान मिला, चार उन्हीं की तरह कमज़ोर लोगों का साथ मिला, तो चल पड़े वो लोग ऐसी मामूली ज़िंदगी जीने। लाइफ का मज़ा तो बुरा होने में है, सब कुछ अपने दम पर हासिल करने में है, दुनिया को किसी भी हालत में हरा कर खुद को आगे लाने में है जनार्दन। लेकिन ये लोग तो इन बातों से कोसों दूर हैं, मर चुके हैं इनके अरमान जनार्दन। सही कहा। हम भी कहा इन जैसे लोगों में फंसे रहे जयवंत। अगर मुझे एक अच्छा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता प्रताप राव से, तो कब का मैं एसीसीएस को ट्रस्टी पद का रिज़ाइन कर दिया होता। मेरा काला पैसा इसमें गोरा हो रहा है, इसलिए मैं इन सबको टॉलरेट कर रहा हूँ, वरना कब का लात मार देता इस पोजीशन को। प्रताप राव दोनों तरफ से गेम खेल रहा है जयवंत। मेरे ज़रिए एक स्टेडी फ्लो वो लाना चाहता है एसीसीएस में, वो भी फिनेंशियल मैटर्स में, और साथ साथ मेरा वजूद भी वो लिमिटेड रखना चाहता है, ताकि सिर्फ उसकी ही चले एसीसीएस के सभी मामलों में। क्योंकि अगर मैंने कुछ बीच में सब देख लिया तो एसीसीएस को एक फिनेंशियल हब बना सकता हूँ मैं, और ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए मुझे हर फैसलों में लिमिटेड ही रखा हुआ है उसने, जिससे उसे अपना पर्सनल फ़ायदा हो, सिर्फ उसकी ही चले इस सब में। कुछ थोड़ा सा बेनिफिट देकर उसने वहाँ के सभी लोगों को बहका कर रखा है, और सिर्फ एक ही दिशा में वो लोग सोचते रहते हैं। स्टूडेंट बेनिफिट का उसने इतना बड़ा असर वहाँ पे करके रखा है कि हर कोई पैसों से रिलेटेड कुछ और बात करना ही नहीं चाहता वहाँ, समझे। ऐसे माहौल में हमारा काम तो ऐसे ही बिगड़ना था जयवंत, और इस सब की भनक तो मुझे एजेंडा मीट के वक्त ही हो गई थी। तो अब आगे क्या करना है? हमसे जो बन सकता था हमने किया, इसके आगे तो हम कुछ और उस एजेंडा मीट में कर नहीं सकते थे। वहाँ तो मेजॉरिटी वोट्स चलते हैं जनार्दन, किसी को खरीदा भी नहीं जा सकता वहाँ, और ऐसा करे भी तो हमें सीधा सीधा धक्का मारकर वहाँ से निकाल देंगे वो लोग। और तो और मेरे जीजा श्रीपाद राव भी उसी माइंडसेट का शिकार हैं, जो कि वहाँ बाकी लोगों का है। इसलिए घर का आदमी वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया जनार्दन। मैंने बहुत पहले ये सोच रखा था कि जीजा जी के ज़रिए हम बहुत सारा धंधा बढ़ा सकते हैं एसीसीएस में, लेकिन उन्होंने तो पहले ही झटके में निराश किया मुझे। मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स उनके सामने भी रखे थे, मगर वो उन सब में कुछ भी नहीं कर सकते थे। मगर वो इन सब में कुछ नहीं कर सकते ये बताकर उन्होंने बात को टाल दिया सीधे सीधे। और मैं ज़्यादा शर्मिंदा ना हूँ इस बात पर, इसलिए मुझे उन्होंने कहा था कि प्रताप राव से बात करने, क्योंकि अगर प्रताप राव ने बात मानी और सब खुद पे लिया तो उसे ये बात बाकी दूसरों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए तो हम प्रताप राव से मिले थे। बकवास है ये बात जयवंत, बिल्कुल बकवास। मैं बात पहले से ही जानता था, लेकिन वो तुम थे जिसने वो बात इतनी कन्विक्शन से की थी, अपने जीजा जी की बात को बेस रख कर, कि एक पल मैं भी मान गया था तुम्हारी बात, और इसलिए राज़ी भी हुआ था तुम्हारे साथ प्रताप राव से मिलने। लेकिन उसका वो पूरा बात को घुमा देने का अंदाज़ देखकर मैं भी उसी पहली मीटिंग में समझ गया था कि इस सब का आगे जाकर कुछ नहीं होना है। और जब उसने वो बात जब एजेंडा मीट में रखी, तब तो हमें सबके हाथों जलील होने के लिए उसने बुला लिया था, और उसका नतीजा आज हमें उस पूरे ईमेल में मिल चुका है जयवंत। मेरी नज़र काफ़ी दूर का फासला देख लेती है नतीजे के बारे में, और इस बार भी वही हुआ। हमने ट्राई तो की थी बहुत,
पूरी ट्राई की थी सेवक जी के कहने पर, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। अगर ये बात सेवक जी की ना होती तो प्रतापराव के साथ की गई पहली मीटिंग के बाद ही मैं इस मामले को बंद कर देता, क्योंकि इस सब का आगे जाके कुछ भी नहीं होना था। फिर भी हमें जो करना था वो हमने कर दिया है जयवंत। तो अब जनार्दन, सेवक जी को क्या बताना होगा हमें इस बार? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या बताए उस मिट्टी के ढेर को। हमेशा उसने ऐसा प्रेशर दिया है कि कुछ आगे सोचने का मौका ही नहीं मिल सकता है कभी। इसलिए इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या बताए सेवक जी को। वेल जनार्दन, अगर मेरी मानो तो हम दोनों साथ में मिलकर सेवक जी से मिले, ऐसा मुझे लगता है। एक संजीदा बात बन चुकी है, इसलिए फ़ोन पर बताना बहुत और लगेगा जनार्दन। अच्छा होगा कि हम दोनों साथ मिलकर सेवक जी से मिले, ताकि जो कुछ हो उस मुलाकात के दौरान हम दोनों ही संभाल सके। और दोनों हमारी बात एक साथ जब रखेंगे तो उन्हें कुछ झूठ भी नहीं लगेगा इस मामले में। इसलिए हमें साथ में मिलना होगा इस बार सेवक जी से, तभी एक सही बात हो सकती है हम दोनों के लिए। शायद तुम सही कह रहे हो इस बार जयवंत। हमें बिल्कुल ऐसे ही करना होगा इस बारे में, ताकि जो कुछ हो हम दोनों साथ में हमारी बात उनके सामने रख सके। वरना इतनी जो मेहनत की है हम दोनों ने, वो किस काम की नहीं रहेगी जयवंत, समझे? शायद ये प्रपोजल इतना पेचीदा है कि इसमें अब राजनीतिक दखलंदाजी का होना लाजमी हो चुका है। बात अगर सिर्फ बिजनेस तक ही होती तो हमने तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। फिर भी अगर उस सब का नतीजा ये निकलता है तो हमें शायद यही समझना होगा कि इन सब मामलों में अब राजनीति के दांवपेच ही चल सकते हैं जयवंत। दूसरा और कोई रास्ता फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा इस सब में। वैसे भी हमने इस बार क्या कुछ नहीं किया, इस सब का तो हमने हर वक्त अपडेट दिया ही था सेवक जी को, तो उन्हें भी हमारी बात मानने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से। हमें हर वक्त उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी जयवंत। शायद हमें जल्द ही उनसे मिलना होगा इस बारे में। वेल जनार्दन, क्या तुम श्योर हो इस सब के बारे में? सेवक जी कभी कभी ऐसे एक्सट्रीम बिहेव करते हैं कि ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो हमें मरवा देंगे जनार्दन। क्या इस बार वो हमें कहीं ओहो जयवंत, चिल। ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। वो एक नेता है और हम बिजनेसमैन। हर नेता को उनके काम आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे बिजनेसमैन की ज़रूरत पड़ती है जयवंत, वरना उनके सब काले काम सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। और अगर वो हमारा कुछ बुरा करना चाहे तो उस सब में उनका ही घाटा है, क्योंकि हमारे जैसे पूरा रिस्क उठाकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले लोग उन्हें कहाँ मिल पाएंगे। वो भी हमारी बात अच्छी तरह से समझते हैं और हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी ज़रूरत है जयवंत। तो उन्हें भी हमारी सिचुएशन को समझने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक मंजे हुए व्यापारी की तरह तुम भी ये बात जानते हो जयवंत कि कोई भी बिजनेस में भरोसे के आदमी लगते हैं तो ही वो बिजनेस फूलता है आगे जाके। तो ये तो एक रिस्की बिजनेस के चक्कर में है हम सेवक जी के साथ। तो ऐसे मामलों में कोई भी यही चाहेगा कि बहुत भरोसे वाले लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। वरना बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जयवंत। और ये खूबियाँ हम दोनों में हैं, जिसके चलते सेवक जी हमें कभी नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनका ही सबसे ज़्यादा घाटा होगा जयवंत, समझे? हम्म बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, फिर उनसे बात करके एक सही वक्त पर सेवक जी से मिलने चलते हैं हम दोनों। देखेंगे फिर आगे क्या होता है इस सब में। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं बात करके तुम्हें बता देता हूँ कब मिलना है वो।